Hello everyone, this side Preet Kamal. I'm a lecturer at Mehchan Polytechnic College Jalandhar. Today I will be discussing with you the subject details of computer networks. But before starting with the subject, I would like to share an important information that is related to Mission Fateh, the campaign run by Punjab government. And it says that we should wash our hands regularly, we should use mask, and we should use the sanitizer, and along with that we should follow the social distancing rules so that we could win against this COVID-19 situation soon. Okay, so today's topic is IPv6 packet format. As we have discussed earlier, the IPv4 packet format, that means the Internet Protocol version 4, we have discussed it already, and there we had seen that in the end it was something like the IPv version 4, the number of hosts that it could take, that it could grasp, that is the capability of the IP version 4 has a bit exhausted. That means the maximum host that it can provide us has mostly exhausted, right? And so maximum number of users that could take the IP version 4 for using their internet services, they have used it, and they are now consumed. All the consumers have been increased, so that is why we need more number of hosts, we need more number of classes of addresses, we need some protocol which could help the help us meet the demand of the increasing consumers day by day. As we all know कि आजकल जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एंड आजकल के कोविड सिचुएशन के अंदर तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारा काम जो भी हो रहा है वो सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है. क्लासेस ऑनलाइन हैं, डॉक्टर्स ऑनलाइन अपने पेशेंट्स के साथ बातें कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मीटिंग्स हो रही हैं ऑफिशियल वो भी ऑनलाइन हो रही हैं. So everything is moving with the help of the internet facilities, right? So that is why we need more number of hosts for meeting this increasing demand of the consumers. So that is why IPv6 packet format, not nowadays, but it has been evolved in the year 2008, and it's working since then. But at that time IP version 4 was very popular, so that is why that was used at that time. But now IPv6 packet format has been into the demand, and it has been into the market, और वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं. अब अगर आप इसका पैकेट फॉर्मेट देखें तो कंपैरेटिव टू IPv4 इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो कम है उसके कंपैरेटिवली, लेकिन काम ये सारा उसी के तरीके से ही करता है. जैसे यहाँ पे वर्जन की बात करें तो ये वही वर्जन है जैसे IPv4 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो IPv4 में उस वर्जन में 4 बिट्स में आ रहा था 0100, तो इट वाज डिपिक्टिंग वर्जन 4. तो फॉर वर्जन 6 इट द बिट्स नंबर ऑफ बिट्स विल बी 0110, so it will depict 6, right? So that is why this is 4 bits of version. By checking out the version of the packet format, we could find out that whether it is IPv version 4 packet or IP version 6 packet format, right? Then after, the next is the priority. Priority means this enables a source to identify the desired delivery priority of the पैकेट. दैट मीन्स कि अगर कोई ऐसा पैकेट है हमारे फॉर्मेट के अंदर, पैकेट के अंदर जो हम डेटा सेंड करना चाहते हैं, उसके अंदर उस डेटा के हेडर के अंदर हम लोगों ने इस प्रायोरिटी बिट के साथ कुछ अटैच कर दिया उसको इस तरह से कि उसको आइडेंटिफाई कर दिया अलग तरीके से कि अगर ये आपकी प्रायोरिटी बिट है तो
तो इस पैकेट को जो है अर्ली डिलीवर करना है तो उसको प्रेफरेंस दी जाए। तो ये प्रायोरिटी बिट अगर इस तरह से कोई भी पैकेट कोई डेटाग्राम आता है सोर्स की तरफ से, तो ये प्रायोरिटी बिट से हमें पता चल जाएगा कि इसे जल्दी डिलीवर करना है या इसमें डिले भी चल जाएगा। तो इसको अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी वी कैन डिलीवर, राइट। तो नेक्स्ट वन इज द फ्लो लेबल एंड यू कैन सी हेयर द टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं एट दिस प्लेस। दिस इज 32 bits only, 24 plus 4 plus 4, that is 32 bits only. 24 plus 4 is 28 and 28 plus 4 is 32. But if we will talk about the source address and the destination address, then in case of IP version 6, the source and the destination address is 128 bits long, right? So we were talking about the flow label. So what do you mean by flow label is कि फ्लो लेबल इट इज़ यूज्ड बाय द सोर्स, ये सोर्स की तरफ से यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई associated packet needing the same type of special handling such as a real time service between a pair of hosts। मतलब कि कोई भी आपका अगर जो काम है वो चल रहा है, कोई डेटा सेंड हो रहा है, तो सोर्स की तरफ से कोई डेटा सेंड हो रहा है, कोई पैकेट है, उसे किसी तरह की कोई स्पेशल हैंडलिंग चाहिए। मींस जैसे एग्जांपल लेती हूँ कि अगर हम किसी को कोई गिफ्ट सेंड करते हैं और आपने वो कोरियर के थ्रू वो गिफ्ट सेंड करना है, तो अगर मान लो कि उसमें आपने कोई ग्लास की चीज़ डाली है, कोई कांच की चीज़ डाली है जो टूटने वाली है, या समटाइम्स वी गो टू सम एयरपोर्ट, तो वहाँ पे आपके जो आपके जो पैकेट्स हैं आपके सामान को वो ले लेते हैं, वो रख लेते हैं अपने पास एंड देन आफ्टर को आपको सामान अलग से मिलता है। तो उसमें अगर कोई इस तरह की चीज़ आप लेके जा रहे हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, उस पैकेट के बाहर बड़ा बड़ा लिख देते हो कि कॉशन, इसको आराम से इसको उठाना, इसको टेक केयर करना, अदरवाइज इसको स्पेशल हैंडलिंग चाहिए। तो समथिंग लाइक दैट अगर आपका जो सोर्स है वो कोई ऐसा डेटा प्रायर डेटा जो है वो सेंड कर रहा है, कोई स्पेशल टाइप ऑफ पैकेट सेंड कर रहा है, कोई रियल टाइम सर्विस है, रियल टाइम सर्विस मीन्स कि कोई क्लॉक है वो चल रही है साथ में, क्लॉक मीन्स कि आपको टाइम बताना है रियल टाइम जो चल रहा है, या आपको वीडियो सेंड कर रहे हो या ऑडियो सेंड कर रहे हो, तो उस टाइम पे वी कैन नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ डिले। तो उसमें अगर डिले आएगा, अगर आपकी वीडियो में या ऑडियो में किसी भी तरह का कोई डिले आएगा, तो दैट विल कम आउट लाइक डिस्टॉर्शन, राइट। सो दैट इज वाई उस तो फ्लो लेबल जो लेबल है, ठीक है, तो वो सोर्स जो है उसको यूज करता है ताकि वो आइडेंटिफाई करवा सके उसको कि ये पैकेट जो है उसको कुछ सम टाइप ऑफ स्पेशल हैंडलिंग चाहिए, तो वो रियल टाइम सर्विस के लिए इसको पेयर किया गया है। तो वो फ्लो लेबल के जो 24 बिट्स का फ्लो लेबल है उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, राइट। देन आफ्टर आ गई पेलोड लेंथ। इट इज एग्जैक्टली द सेम लाइक IPv4 में हमने डिस्कस किया था, द टोटल लेंथ वही सेम चीज़ है, 65536 यू कैन सी है। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पेलोड की 64 किलोबाइट्स बोलते हैं उसको, या 65535 बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपकी टोटल लेंथ है, उसको मिला के आपकी डेटाग्राम और हेडर को मिला के आपकी जो टोटल लेंथ बनती है उसे हम पेलोड लेंथ बोलते हैं। पेलोड इज बेसिकली द डेटाग्राम प्लस योर हेडर, ओके। तो उसके साथ हम लोग इसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट बिट इज नेक्स्ट हेडर, ठीक है। तो ये 8 बिट्स की फील्ड है नेक्स्ट हेडर। तो ये किस तरह से काम करती है कि हेडर जो है वो इमीडिएटली फॉलो कर रहा है IP वर्जन 6 के हेडर को एंड यूजेस द सेम वैल्यूज एज IP वर्जन 4 प्रोटोकॉल फील्ड्स वेयर अवेलेबल एप्लीकेबल, ठीक है। तो द नेक्स्ट हेडर के अंदर क्या है, ऑप्शंस होते हैं, हेडर के ऑप्शंस होते हैं, हायर लेयर प्रोटोकॉल्स और नो अबव प्रोटोकॉल्स अबव द IP। मतलब कि हायर लेयर प्रोटोकॉल्स के अंदर आपका ऑप्शंस हैं आपके पास कि हायर लेयर प्रोटोकॉल्स जो हैं या प्रोटोकॉल्स नहीं है अबव IP, अगर कोई आप प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उस चीज को इंडिकेट करने के लिए आपके पास ये नेक्स्ट हेडर की जो ऑप्शन है वो आती है। सो इसका मतलब कि जैसे हम नेक्स्ट हेडर की यहाँ पे बात करें तो इसको एक और तरीके से समझाती हूँ
कि जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, तो नेक्स्ट हेडर का क्या मतलब है कि IPv6 में हमारे पास ऑप्शंस होती हैं अलग अलग, और हमारे पास डिफरेंट हेडर्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग काम कर सकते हैं हमारे लिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे IPv6 का जो हेडर है इस टाइम वो TCP हेडर में काम कर रहा है, या फिर नेक्स्ट जो हेडर आने वाला है वो TCP हेडर है या TCP सेगमेंट है, ठीक है। तो उस TCP सेगमेंट का जो नंबर है, जो एक बाय डिफॉल्ट नंबर उसको दिया गया है कि अगर हम उसको 6 नंबर प्रोवाइड करेंगे तो इसका मतलब है अगर नेक्स्ट हेडर का नंबर 6 होगा तो इसका मतलब जो नेक्स्ट हेडर जो आने वाला हेडर है वो TCP का हेडर है, वो TCP का सेगमेंट है। या इसके अलावा जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अगर वो IPv6 में अब उस हेडर की वैल्यू है 43, ठीक है, तो वो 43 का मतलब है वो रूटिंग हेडर है कि वो अब रूट करने के लिए उसके साथ हम किसी भी डेटाग्राम के साथ हम हेडर्स क्यों अटैच करते हैं, हम हेडर्स अटैच करते हैं सो दैट कि उस डेटाग्राम के, उस फ्रेगमेंट के, उस पैकेट के जो भी हमारे पास जो भी सेंड हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सारी हेडर के अंदर होती है, क्योंकि जो डेटा है फॉर्मेट तो उसके अंदर सिर्फ डेटा होता है हमारा, जो हमने मैसेज ट्रांसमिट किया है, फॉर एग्जांपल हेलो ट्रांसमिट किया है, हाय हाउ आर यू, व्हाटएवर जो भी आपने मैसेज लिखा है अपना, तो डाटा के अंदर जो है वो सिर्फ डेटा आपका होगा। लेकिन जो अब वो डेटा कहाँ जाना है, कहाँ से जाना है, कौन सा उसने रूट फॉलो करना है, कौन सी उसको ऑथेंटिकेशन मिली हुई है, या व्हाटएवर जो भी उसके साथ की चीज़ें हैं वो सब कुछ हेडर के अंदर होता है, राइट। तो जो नेक्स्ट हेडर का ये वाला जो आपका कॉलम है नेक्स्ट हेडर, तो इसकी जो 8 बिट्स हैं इसके साथ हमें ये पता चलता है कि हमारा जो नेक्स्ट हेडर है वो कौन सा है, वो TCP का हेडर है, वो रूटिंग हेडर है, वो ऑथेंटिकेशन हेडर है, और जो भी इसके अंदर वैल्यूज होंगी रूटिंग हेडर, अगर जैसे आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये नेक्स्ट हेडर जो है वो रूटिंग हेडर है, तो इसमें 43 है तो इसका मतलब नेक्स्ट जो है वो रूटिंग हेडर है, राइट। तो अब जो रूटिंग हेडर है उसके अंदर भी एक नेक्स्ट हेडर होगा, तो उसकी वैल्यू अगर 51 है तो इसका मतलब वो ऑथेंटिकेशन हेडर है। अब ऑथेंटिकेशन हेडर के अंदर 6 है, इसका मतलब वो TCP सेगमेंट है या TCP हेडर है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपका IPv6 का हेडर है और जो भी उसके नेक्स्ट वाले हेडर्स हैं सबके अंदर नेक्स्ट हेडर की इंफॉर्मेशन होगी, और जो लास्ट वाला होगा उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट हेडर की नहीं होगी, उसके अंदर नेक्स्ट हेडर की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आपको मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट हेडर कि ये आइडेंटिफाई करता है कि IPv6 हेडर जो है वो इमीडिएटली उसको कौन फॉलो कर रहा है, कौन सा हेडर उसको इमीडिएटली फॉलो कर रहा है, और इसके अलावा वो बाकी सारी सेम फील्ड्स यूज कर रहा है IPv4 प्रोटोकॉल्स वाली, ठीक है। सिर्फ ये हेडर वाला ऑप्शन जो है वो उसमें अलग है। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज योर होप लिमिट। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो 8 बिट्स का होप लिमिट है, एंड इट इज एग्जैक्टली द सेम लाइक जो टाइम टू लिव हमने IPv4 में पढ़ा, ठीक है। तो टाइम टू लिव का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूटर्स द पैकेट कैन the packet can go through before being discarded, मतलब उसको फिनिश होने से पहले, उसकी स्ट्रेंथ फिनिश होने से पहले वो मैक्सिमम कितने रूटर्स को अप्रोच कर सकता है, कितने मैक्सिमम रूटर्स तक पहुंच सकता है, कितनी मैक्सिमम होप्स तक पहुंच सकता है, राइट। तो वो वैल्यू जो है वो कौन सेट करता है, वो सोर्स सेट करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, अगर हमने किसी भी जगह के ऊपर पहुंचना है तो इफ वी डोंट नो द वे, तो अगर हम किसी को पूछते हैं कि उस वहां पे उस जगह पे कब पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, अपने अंदर आपको उसने बता दिया कि आप अगर ये 5 ट्रैफिक लाइट्स को कवर करोगे तो आप जो है वहां से आप राइट टर्न करना या लेफ्ट टर्न करना, तो वहां से आपको आपकी डेस्टिनेशन जो है वो मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, अपने माइंड में 5 सेट कर लोगे, तो जितनी ट्रैफिक लाइट्स आती जाएंगी आप उस 5 में से उतनी को कम करते जाओगे। मान लो आपने 2 ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल कर ली, कवर कर ली, तो आपके पास बची 3, तो नेक्स्ट फिर कर ली तो बची 2, फिर नेक्स्ट फिर कर ली तो बची 1, तो नेक्स्ट आपने कर ली तो इसका मतलब आपने 5 लाइट्स क्रॉस कर ली। नाउ इट्स फिनिश्ड, आपका रास्ता जो है, आपकी डेस्टिनेशन जो है वो आपके पास पहुंच चुकी है, इससे ज्यादा आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे होप लिमिट की बात करते हैं तो कितने होप्स, कितने राउटर्स मैक्सिमम वो कवर अप कर सकता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले,
और अगर उससे ज़्यादा वो क्रॉस करता है तो फिर वो पैकेट जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इफ़ द होप लिमिट जो है वो 0 पे पहुंच जाती है जब, तो उसके बाद आपका पैकेट जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो उसके आगे वो फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम लाइक जो टाइम टू लिव हम लोगों ने IPv4 में पढ़ा है। तो इट्स नॉट अबाउट द टाइम दैट अ पैकेट कैन स्टे इन द नेटवर्क, कोई टाइम लिमिट नहीं है उसके पास, होप लिमिट है, ठीक है। ओनली लिमिटर जो राउटर्स हैं उसके ऊपर लिमिट है कि इतने नंबर ऑफ राउटर से ज्यादा वो क्रॉस नहीं कर सकता, 8 से 10 से 3 से 5 से वट एवर द लिमिट विल बी, वो सोर्स डिसाइड करेगा उसकी होप लिमिट। तो वो इसी बिट फील्ड के अंदर यहीं पे 8 बिट्स के अंदर उसकी वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे फिक्स्ड होगी। तो फिर जैसे जैसे ये एक एक राउटर को क्रॉस करता जाएगा, एक एक होप को क्रॉस करता जाएगा, वैसे वैसे उसकी वैल्यू बाय 1 डिक्रीमेंट होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 6 थी, तो एक राउटर को क्रॉस करके इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी, फिर 4 3 2 1। और अगर उसके पहले पहले वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तो इट्स गुड, अगर नहीं पहुंचता है तो जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होगी होप लिमिट की, वैसे ही आपका जो पैकेट है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अदर देन दैट इट कैन रिमेन इन द नेटवर्क फॉर एनी टाइम, जितना मर्जी वो टाइम लेके अपने नेटवर्क के अंदर वहाँ रह सकता है आपका पैकेट, बट नॉट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द होप। ओके, होप लिमिट से ज्यादा नहीं रह सकता। तो लास्ट में आ गया आपका सोर्स एड्रेस और द डेस्टिनेशन एड्रेस। तो सोर्स एड्रेस आप लोगों को पता है क्या होता है कि जहां से आपका डेटा जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, जहां से आपका डेटा पैकेट आ रहा है, और डेस्टिनेशन जहां तक उसने पहुंचना है, द लास्ट जो लास्ट उसकी स्टेशन है जहाँ पे उसने पहुंचना है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेस्टिनेशन। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो IP हेडर 4 आप लोगों को ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, IPv6, ठीक है। तो यहाँ पे वर्जन है, हेडर लेंथ है, टाइप ऑफ सर्विस, ये सारी बहुत सारी फील्ड हैं इसके अंदर, बट यहाँ पे बहुत थोड़ी सी फील्ड्स के साथ ही इसको कवर अप कर लिया गया है। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो IPv4 एड्रेसेस जो हैं तो दे आर ऑफ 32 बिट लेंथ, राइट, एंड इट इज ऑफ 128 बिट लेंथ का होता है IPv6 का एड्रेस। एड्रेसेस की बात कर रहे हैं हम, एड्रेसेस मीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। तो IPv4 में इट इज ऑफ 32 बिट्स और IPv6 में 128 बिट की लेंथ होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यहाँ पे जो एड्रेसेस हैं दे आर बाइनरी नंबर्स और उसको डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था पहले कि जो IPv4 है उसमें हम 192.168.1.4 समथिंग लाइक दिस, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट IPv6 में इसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं एड्रेस के, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं IPv6 को के एड्रेस को, ठीक है। देन आफ्टर इज IP6 जो है वो सपोर्ट जो है, IP6 सपोर्ट जो है इसमें ऑप्शनल होती है। IPv4 के अंदर सिक्योरिटी सपोर्ट जो है इसमें ऑप्शनल होती है, लेकिन इसमें इनबिल्ट सिक्योरिटी सपोर्ट है, तो हमें एक्स्ट्रा से लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने ये डीमेरिट देखी थी IPv4 की कि उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइडेड नहीं होती है हमें, और यहाँ पे सिक्योरिटी सपोर्ट जो है वो इनबिल्ट है, राइट। देन आफ्टर फ्रेगमेंटेशन जो है वो सेंडर करता है, और एंड फॉरवर्डिंग रूटर्स, जो राउटर्स हैं उसके बीच में और जो सेंडर हैं वो दोनों फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे IPv6 में ये जो राइट है फ्रेगमेंटेशन का, वो सिर्फ सेंडर के पास है, वो अपने हिसाब से कर सकता है, रूटर्स अपने अकॉर्डिंगली आपको डेटा को फ्रेगमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। देन आफ्टर इज नो पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें अगर पैकेट फ्लो करता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे फ्लो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास IPv6 का हेडर जो है यूजिंग द नेम फ्लो लेबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि पैकेट का फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे ये जो फील्ड है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें चेकसम फील्ड अवेलेबल है IPv4 के अंदर, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसका सम जो है वो चेक करके उसको सिक्योरिटी या यू कैन से लाइक पैरिटी चेक की तरह से, तो उसको चेकसम यहाँ पे हम अवेलेबल है IPv4 के अंदर। बट IPv6 में ऐसा कोई भी चेकसम जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसमें भी ऑप्शंस फील्ड अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि हम अगर हेडर की लेंथ जो है वो वेरिएबल है तो उसमें कुछ ऑप्शंस हम लोग डाल सकते हैं, किस तरह का हेडर है और, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस फील्ड अवेलेबल नहीं है। रादर यहाँ पे एक्सटेंशन हेडर्स जो हैं वो अवेलेबल है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि नेक्स्ट हेडर जो है वो बेसिकली दे आर एक्सटेंशन हेडर्स, की एक हेडर के अलावा हम लोग उसमें एक्सटेंशन हेडर्स भी लगा सकते हैं, राइट।
तो अगर हम ARP की बात करें, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की बात करें, जैसे मैंने बताया था कि वो मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं हम ARP को। अगर हम हमें एक IP एड्रेस जैसे पता है तो हमें मैक एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम ARP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल अवेलेबल है IPv4 एड्रेसेस के अंदर मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। बट यहाँ पे जो है ARP उसको रिप्लेस कर दिया गया है विद अ फंक्शन कॉल्ड नेबर डिलीवरी प्रोटोकॉल और NDP, राइट। तो NDP प्रोटोकॉल के साथ इसको जो है वो कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। ओके, तो अगर हम बात करें इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, दैट इज IGMP की बात करें, तो इट इज यूज्ड इन दिस केस टू मैनेज द मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबरशिप। ठीक है, तो हम IGMP प्रोटोकॉल जो IPv4 में यूज कर सकते हैं। ठीक है, IPv4 के अंदर जैसे एप्लीकेशन लेयर्स वगैरह में IGMP प्रोटोकॉल जो है वो यूज होता है मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबरशिप को मैनेज करने के लिए। बट यहाँ पे इसको हमने रिप्लेस कर दिया है मल्टी कास्ट लिसनर डिस्कवरी MLD मैसेजेस के साथ इसको रिप्लेस कर दिया है। तो वहाँ पे IGMP यूज होता था, यहाँ पे MLDs यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, बट IPv6 के अंदर ब्रॉडकास्ट मैसेजेस अवेलेबल नहीं है। रादर यहाँ पे ऑल नोड मल्टीकास्ट IPv6 जो है वो यूज होता है। तो सिमिलर ब्रॉडकास्टिंग वाला ही काम जो है वो करता है। वो ऑल नोड्स मल्टीकास्ट का क्या मतलब है? मल्टीकास्ट का मतलब होता है कि मल्टीपल जो आपके सेगमेंट्स हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं, उनको सिर्फ पहुंचेगा, किसी पर्टिकुलर को नहीं पहुंचेगा या सबको नहीं पहुंचेगा। तो ऑल नोड्स मल्टीकास्ट का क्या मतलब है कि नेटवर्क के अंदर जितनी भी नोड्स हैं उन सबको मल्टीकास्ट कर दो। तो दैट इज द सेम एज ब्रॉडकास्ट, बस उसका नाम डिफरेंट उन्होंने यूज कर लिया है, दैट्स इट। ओके, देन इज मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। उसमें स्टैटिक और डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों तरीके की हो सकती है। जैसे मैंने बताया था कि स्टैटिक और डायनामिक मैपिंग होती है। स्टैटिक में स्टैटिक टेबल होता है, उसको मैनुअली चेंज करना पड़ता है, और डायनामिक में ऑटो अपडेशन जो है वो होती है। बट यहाँ पे स्टैटिक का कोई इश्यूज नहीं है IPv6 के अंदर, ओनली ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इज देयर। तो कुछ और है इसके अंदर कि इसको जब डिप्लॉय किया गया था, जब बनाया गया था IPv4 को, इट वाज डिप्लॉयड इन 1981, बट ये उसके 18 साल के बाद IPv6 जो है इसको डिज़ाइन किया गया। और लेकिन ये अभी कुछ ईयर्स से ये पॉपुलर हुआ है बहुत ज़्यादा, बिकॉज उससे पहले IPv4 में अभी होस्ट अवेलेबल थे, तो दैट इज वाई इट वॉज वर्किंग वेरी अप्रोप्रिएटली। बट अभी फास्ट कनेक्शंस के लिए IPv6 प्रोटोकॉल जो है नए PCs वगैरह में ये यूज हो रहा है। एड्रेस साइज यू ऑल नो वेरी वेल कि ये जो है एड्रेस साइज जो है वो 32 बिट का ही है, राइट। तो इसके अंदर 128 बिट का है। जो इसका फॉर्मेट है, एड्रेस फॉर्मेट, तो ये डोटेड डेसिमल नोटेशन है, हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, दैट इज 3FFE कॉलन F2। तो इसमें डॉट यूज करते थे, इसमें कॉलन यूज करते हैं। इसमें डेसिमल डेटा यूज कर रहे थे, इसमें हेक्साडेसिमल डेटा का यूज हो रहा है। ये 32 बिट्स का था, ये 128 बिट्स का है एड्रेस, राइट। तो इस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं। और इसका अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं, तो इसमें कुछ ये काफ़ी करोड़ से ज़्यादा कुछ हैं, ये 429 करोड़ अराउंड जो हैं 2⁻32। और यहाँ पे ये 2⁻128, तो इट कुड नॉट इवन बी रेड प्रॉपरली। तो ये इतने नंबर ऑफ एड्रेसेस जो हैं वो IPv6 के अंदर अवेलेबल हैं। तो इतने नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं आप के इसके साथ वर्क कर सकते हैं IPv6 के साथ। तो इसका जो ये तो है एग्जॉस्ट हो गया IPv4, बट IPv6 का एग्जॉस्ट होना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इसलिए इसको इतने ज़्यादा लेवल के ऊपर बढ़ाया गया है, क्योंकि इसका एड्रेस जो है 128 बिट्स का है। तो इसका जो नंबर ऑफ होस्ट इसके अंदर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो है वो 2⁻128 होस्ट जो है वो अवेलेबल है। देन अगर प्रीफिक्स नोटेशन की बात करें तो इसमें प्रीफिक्स जो है नोटेशन, प्रीफिक्स जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर कि वो क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम /24 का प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, और यहाँ पे /48 का, डबल देन दैट हम लोग उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एड्रेसेस। 4 ऑक्टेट्स में इसको हम लोग शो करते हैं, डेसिमल नोटेशन जो है उसको यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। और डॉटेड डेसिमल नोटेशन इसको बोलते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, डॉट्स यूज़ करते हैं इन बिटवीन, एंड डेसिमल नोटेशन जो है यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन IPv6 की अगर बात करें तो इसमें 16 ऑक्टेट्स जो हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसको कॉलन्स के साथ हम लोग इसको CIDR नोटेशन इसको बोलते हैं हम लोग,
राइट। तो दिस इज बेसिकली इसको कॉलन्स के साथ हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसमें हम यूज कर रहे हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट जो है वो इसके अंदर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज द कैटेगरीज। जो IPv6 के अंदर कैटेगरीज ऑफ एड्रेसेस जो हम उसकी बात कर रहे थे अभी, एनी कास्ट, मल्टी कास्ट, ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे थे, तो इसमें ब्रॉडकास्ट की ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। तो इसके अंदर 3 तरह के एड्रेसेस जो हैं जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यूनिकास्ट, एनीकास्ट और मल्टीकास्ट। तो यूनिकास्ट मतलब यूनी, एक सिंगल, तो सिंगल अगर कंप्यूटर को हमने 1 to 1 अगर कम्युनिकेशन करनी है तो यूनिकास्ट एड्रेस जो है वो उसको सपोर्ट करेगा, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। एनीकास्ट जो है वो एक नया तरीके का एड्रेस फॉर्मेट जो IPv6 में डाला गया है। तो इट डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विद एड्रेसेस दैट हैव द सेम प्रीफिक्स। तो इसका सेम प्रीफिक्स होगा, हमने लगाया होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो है उनको विद एड्रेसेस जो है उसको हम पर्टिकुलरली डिलीवर जो है वो कर सकते हैं। देन इन कंट्रास्ट टू कंडक्टिंग ट्रांसमिशन टू ऑल नोड्स इन अ ग्रुप as in multicast, anycast set the packet only to the nearest node in the group। तो ग्रुप के अंदर जो भी नियरेस्ट नोड होगी उसके साथ जिसका जो प्रीफिक्स है वो सेम होगा सेंटर वाले के साथ का, तो उसी को वो डेटा जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा। तो मल्टीकास्ट का मतलब है कि 1 to many जैसे हम बोल देते हैं, दिस इज मल्टीकास्ट। तो अ पैकेट सेंड टू अ मल्टीकास्ट एड्रेस मस्ट बी डिलीवर्ड टू ईच मेंबर ऑफ द सेट। जैसे हम लोग व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना लेते हैं ना, तो 1 to many वो ट्रांसमिशन जो है वो हो जाती है, राइट। तो दैट इज लाइक मल्टीकास्ट कि मल्टीपल का ग्रुप बना है जिसको हम उसमें डालना चाहते हैं आप डाल सकते हो, उसको नहीं डालना चाहते हो आप नहीं डाल सकते हो, राइट। तो वो हो गया मल्टीकास्ट, ठीक है। तो एनी कास्ट का आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे आपने कोई मैसेज है आपके पास और आपने उसको फॉरवर्ड करना है किसी को, तो आप जब अपना व्हाट्सएप ओपन करते हो तो उसमें क्या करते हो कि सबसे पहले जो आपके 5 सबसे ऊपर जो 5 नंबर्स होते हैं जिसके साथ आपने मैक्सिमम चैट्स करी होती हैं या रीसेंट चैट्स होती हैं जिनके साथ, तो मोस्टली आप जब फॉरवर्ड करते हो तो 5 को फॉरवर्ड होता है, तो आप मोस्टली उसी को उन 5 को फॉरवर्ड कर देते हो। तो इट बिकम्स कि जो नियरेस्ट नोड है उसको आपका मैसेज जो है वो ट्रांसमिट जो है वो हो जाता है। तो दैट इज एनी कास्ट, राइट। तो नियरेस्ट नोड इन द ग्रुप को मिल जाता है वो मैसेज। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें IPv6 ओवर IPv4 की, तो इसका एड्रेस स्पेस लार्ज है ऑब्वियसली, एज वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ कि 32 बिट एड्रेसेस की जगह 128 बिट्स एड्रेस है, तो लार्ज एड्रेस स्पेस है। हेडर फॉर्मेट इसका बेटर है, इसमें बेस हेडर इंसर्ट किए गए हैं, एक्सटेंशन हेडर्स इंसर्ट किए गए हैं, अपर लेयर डेटा है, स्पीड सिंप्लीफाई किया गया है, राउटिंग प्रोसेस को स्पीड अप किया गया है, नए ऑप्शंस नई फंक्शनैलिटीज जो है इसको एडअप करी गई हैं इसके अंदर। देन एक्सटेंशन हेडर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो एक तरीके का न्यू टेक्नोलॉजी न्यू एप्लीकेशंस हैं, तो वो उससे उसको हेल्प मिलती है वर्क करने के लिए, प्रोटोकॉल्स के वर्किंग के लिए हेल्प मिलती है। देन आफ्टर सपोर्ट फॉर रिसोर्स एलोकेशन इज लाइक कि 2 फील्ड्स हैं हमारे पास, तो ट्रैफिक क्लास एंड फ्लो लेबल हैं, तो 2 फील्ड्स हैं, दे हैव बीन एडेड to enable the source to request special handling of the packet। से priority है, ठीक है, priority को यहाँ पर उन्होंने traffic class बोला है, तो priority है और flow label है, तो ये दोनों fields हैं हमारे पास, so that कि अगर किसी particular message को बहुत ज़्यादा immediate concern की ज़रूरत है तो उसे वो immediately deliver करेगा। तो इस तरह से support जो है वो resource allocation की support जो है वो यहाँ पे मिल रही है। Then after support for the more security, as जो IPv4 था उसके अंदर सिक्योरिटी इश्यूज हमें बाहर से इंटीग्रेशन और एनकैप्सुलेशन ऑथेंटिकेशन वगैरह जो थे वो हमें इंसर्ट करने पड़ते थे, बट यहाँ पे जो इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन के ऑप्शंस हैं वो पैकेट के अंदर ही इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो सारे प्रोवाइड किए गए हैं, ऑथेंटिकेट किए गए हैं ऑलरेडी, तो इसको ये जो है वो सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है, राइट। तो these are some advantages of IPv6 over IPv4. So in this way our version 6 is nowadays being utilized, and because of the exhaustion of the IP version 4 hosts, number of hosts. So here we have a larger address space, a large number of hosts, and even uncountable you can say. And so that is why it is very much preferable and nowadays used. So this was all about the IP version 6 and its parts, its categories, its addresses, its advantages, and all these things about it. So I hope you all are clear about this IP version 6, and will take any queries
in the live session. So till then, take care, bye bye, and do like and comment on my video so that I could know that whoever of you has gone through it thoroughly. Okay, bye bye, take care.